I welcome you all to Major HS Kalsi's Baloi Academy. This is your GS mentor, Asmita Singh, and today we'll be covering the most important sports current affairs for the year 2026. This video will be the compilation of the 4 months of this year, and starting with the very first question of the day, Khelo India Beach Games 2026. So this whole Khelo India current affairs are really important because there are so many circuits in Khelo India, like Khelo India Winter Games, Khelo India Para Games, Khelo India University Games, and a lot more. Today we are discussing Khelo India Beach Games. All right. The second edition was organized at Ghogla Beach in Daman and Diu. So first of all, we need to keep this thing in mind that this one is the second edition. In the year 2025, that was the first edition of Khelo India Beach Games. All right. Secondly, we need to keep in mind that what is the venue? It is the Ghogla Beach in Daman and Diu, which is a union territory, with a dolphin mascot named Pearl. Now, the third important information is that who was the mascot? All right. So, Pearl is a fish. Karnataka clinched the overall championship. So who topped the Khelo India Beach Games 2026? It was Karnataka. Some additional information which are very important. Khelo India Games 2018 में start हुए थे, just to keep an upliftment to the sports person of India. All right. So 2018 में New Delhi was the venue, and the first Khelo India Beach Games, as I already told you, 2025 में हुए थे Diu में. All right. So moving to the second information, Vijay Hazare Trophy. First of all, this trophy is related to cricket. All right. You need to keep this thing in mind because many a time the assessor asks that Ranji Trophy is related to which sport, and then the Vijay Hazare Trophy. So we need to keep this thing in mind. And if I talk about this year, 2025-26 edition, which was the 33rd edition, Vidarbha won its first ever Vijay Hazare Trophy, right? Now, Vidarbha defeated Saurashtra. Exam में आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी basically टीम जीती और कौन सी टीम को defeat किया. ये information एक तो आपको mind में रखनी है, ठीक है? इसके अलावा वो आपसे पूछ सकते हैं, हालांकि ये बहुत ही specific details हैं, exam में नहीं पूछी जाती हैं. सिंपली ये पूछा जाएगा कि कौन पहली बार जीता है बेसिकली विजय हजारे ट्रॉफी को. तो वो जीती है विदर्भा. एक तो सबसे पहला ही इनका ये ट्रॉफी है, तो ये एग्जाम के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है. इससे पहले कभी भी विदर्भा नहीं जीती थी, ठीक है? और विदर्भा ने डिफीट किया है 38 रन से सौराष्ट्र को, ठीक है? इट्स देयर मेडन मींस द वेरी फर्स्ट टाइटल. ओके. द विजय हजारे ट्रॉफी बिगैन इन 2002 एंड 2003. नाउ मैंने हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, या आप कह लीजिए हर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स रखे हुए हैं आप लोगों के लिए, बिकॉज एग्जाम में कई बार स्टैटिक जीके पूछा जाता है, राइट? तो दे मे आस्क यू कि जो विजय हजारे ट्रॉफी है ये कौन से ईयर में शुरू हुई थी. सो द ईयर वाज 2002 एंड 3. विजय हजारे एक बहुत ही रिनाउंड क्रिकेटर थे, ठीक है? ही वाज अ लेजेंडरी इंडियन क्रिकेटर एंड कैप्टन. वो इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन भी रहे कुछ साल, एंड ये एक राइट हैंड बैट्समैन थे. ऑल राइट. तो बस इतनी इंफॉर्मेशन है जो आपको अपने माइंड में रखनी है स्टूडेंट्स. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन विच इज रिगार्डिंग नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट. कई बार तो बेसिक क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि जो वॉलीबॉल है या जो बास्केटबॉल है, ठीक है, लेट्स से फुटबॉल है, इसमें कितने टीम प्लेयर्स होते हैं ईच साइड, राइट? हालांकि क्वेश्चन है नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट. द प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द 72nd एडिशन. तो ये जो 72nd एडिशन है नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट का, इसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट करा, ठीक है? हालांकि वर्चुअली करा, ही वाज नॉट प्रेजेंट देयर, ठीक है? वर्चुअली इन्होंने इसका इनॉग्रल या फिर इसको आप कह सकते हैं स्टार्ट किया, ठीक है? और ये कहाँ पे हुआ? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में, ठीक है? चलिए, इनॉग्रल जो इवेंट था, featuring mascots named Nandu and Neera. Now see, this thing is very important. Basket एक सिंबल होता है, हर स्पोर्ट्स में एक सिंबल होता है,
ठीक है, जो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर इवेंट की एक थीम को बेसिकली शोकेस करे। ऑलराइट, बहुत ही एक पायस सिंबल कंसिडर करा जाता है मैस्कॉट को। ठीक है, सो मैस्कॉट के नेम क्या है? नंदू एंड नीरा। द इवेंट फीचर्ड ओवर, देखिए 1000 प्लेयर्स आए हुए थे। ठीक है, 58 टीम्स ने पार्टिसिपेट करा और 28 स्टेट्स, जो कि भारत के स्टेट्स हैं, अलग अलग जगहों से अलग अलग टीम्स ने पार्टिसिपेट करा। And that's how we had somewhere around 1000 volleyball players. The first tournament held in 1951 at Chennai. Now see, कितने पुराने टाइम से हम इसको बेसिकली सेलिब्रेट करते आ रहे हैं, ठीक है, या इन स्पोर्ट्स को, या नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, सो वी स्टार्टेड प्लेइंग इट in the year 1951, all right? So that's why right now it's the 72nd edition. Let's move to the next information, which is regarding Khelo MP Youth Games. All right. Now we are specifically talking about a particular state, which is Madhya Pradesh. So Khelo Madhya Pradesh Youth Games. The Madhya Pradesh Chief Minister inaugurated the state's own Olympics in Bhopal. See, the capital of Madhya Pradesh is Bhopal, right? और भोपाल में ही ये जो CM है, इन्होंने बेसिकली अनाउंस किया कि भाई मध्य प्रदेश के स्पोर्ट्स कल्चर को बहुत ही ज्यादा अपलिफ्ट करना है। ठीक है, एंड फॉर दैट अपलिफ्टमेंट इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू हैव सर्टेन गेम्स, सम स्पोर्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी है भोपाल में। वहां पे एक स्लोगन के साथ, स्लोगन क्या था? मध्य प्रदेश की जय, हम सबकी विजय। ठीक है, दिस हैपेंड ऑन 13 जनवरी बाय CM। अच्छा, व्हाट इज द नेम ऑफ द CM ऑफ MP? दैट इज डॉक्टर मोहन यादव। ऑल राइट, इट विल फीचर कॉम्पिटिशन इन 28 स्पोर्ट डिसिप्लिन। तो मतलब अलग अलग स्पोर्ट्स खेले जाएंगे, टोटल 28 डिफरेंट स्पोर्ट्स खेले जाएंगे। और जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं MP के, उनको बेसिकली क्या करा जाएगा? अपलिफ्ट किया जाएगा। ठीक है, उनको पुश किया जाएगा ताकि वो आगे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें, इंडिया के लिए मेडल लाए। ठीक है, the next information is regarding women's 2026 FIH हॉकी वर्ल्ड कप। ठीक है, तो हॉकी की बात हो रही है। सो जो विमेंस का 2026 FIH हॉकी वर्ल्ड कप है, वो बेसिकली जो क्वालिफायर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो वो कहाँ पे हुआ? तेलंगाना। ठीक है, देखिए, इवन हॉकी इंडिया साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU बोलते हैं इसको, शॉर्ट फॉर्म इसका ये है, with the Telangana government to host the qualifiers in the capital city. मतलब इवेंचुअली हॉकी वर्ल्ड कप होगा, तो जब हॉकी वर्ल्ड कप होगा तो अलग अलग कंट्रीज से क्वालिफाई करेंगे ना प्लेयर्स, टीम्स क्वालिफाई करेंगी। तो ये जो क्वालिफायर राउंड था, ये कहाँ पे हुआ? तेलंगाना में हुआ। ठीक है, the 2026 women's FIH hockey world cup will be jointly hosted by Belgium and Netherlands. Now student confuse मत होइएगा, चीजें बहुत ही क्लियर आपके सामने लिखी हुई हैं। वेन्यू तेलंगाना नहीं है FIH हॉकी वर्ल्ड कप का। ठीक है, अगर मैं बात करूं विमेंस हॉकी वर्ल्ड कप की, तो इसका वेन्यू है बेल्जियम ने और नेदरलैंड्स ने, मतलब जॉइंटली को होस्ट है। ठीक है, एक दूसरे के, बेल्जियम एंड नेदरलैंड्स। हाँ, इंडिया के तेलंगाना स्टेट में बेसिकली क्वालिफायर राउंड हुआ। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट। ठीक है, देखिए 2025, सबसे पहले तो इस एक्ट का ही नाम याद रखिएगा। एक्ट से देखिए कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आपसे पूछेंगे नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नमेंट एक्ट इज ऑफ विच ईयर? सो प्लीज बी माइंडफुल, द ईयर इज 2025। ठीक है, हम 2026 में इसको क्यों कवर कर रहे हैं? यू मस्ट बी थिंकिंग दैट, राइट? सो पार्शली केम इनटू इफेक्ट बिकॉज ये अब आ गया है, पूरी तरीके से तो नहीं बट पार्शली फोर्स में आ गया है, इफेक्ट में आ गया है। कब से? January 1, 2026 से, paving the way for a 3-membered National Sports Board, जिसको NSB बोलते हैं, and a tribunal to handle sporting disputes. देखिए, कई बार स्पोर्ट्स रिलेटेड बहुत सारे डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। इसका एक बेसिक एग्जांपल है डोपिंग का केस आना। ठीक है, जिसमें कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन कोई इस तरीके का मेडिकेशन आप कह सकते हैं, या इस तरीके का ड्रग ले लेते हैं, जिससे जो उनकी परफॉर्मेंस है वो एक, या जो वो ड्रग है वो एक कैटलिस्ट का काम करती है, उनकी परफॉर्मेंस काफी उम्दा हो जाती है। ठीक है, बहुत ज्यादा, बिकॉज सिंपल सी बात है, जो बॉडी है वो कहीं ना कहीं इस तरीके से ड्रग को लेने की वजह से एक, यू कैन से यू नो, जो एक नॉर्मल कैंडिडेट से या स्टूडेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है, नॉट स्टूडेंट, स्पोर्ट्स पर्सन से,
कि if he or she has not taken any sort of drug or any sort of medicine, ठीक है, और मेडिकेयर, तो वो बेसिकली वैसे ही परफॉर्म करेगा जैसे करा जाता है, लेकिन ड्रग लेने की वजह से आप अच्छे से जानते हैं क्या हो जाता है, हाइक हो जाता है, राइट? सो कहीं ना कहीं विच इज रॉन्ग. दिस एक्ट वाज पास्ड ऑन August 18, 2025 में. ये क्या हुआ था, पास हुआ था टू रेगुलेट नेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज. ठीक है, सो पास कब हुआ था? दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट. डिस्प्यूट तो रिजॉल्व करेगा ही, इस एक्ट का मेन ही पर्पज है. मैंने तो सिर्फ डोपिंग का एग्जांपल दिया, उसके अलावा भी जितने भी डिस्प्यूट होते हैं स्पोर्ट्स रिलेटेड, अगर चीटिंग होती है, ठीक है, स्पोर्ट्स में, या लेट्स से बेटिंग होती है, ठीक है, तो डेफिनेटली यही एक्ट इंपॉर्टेंट है. लेकिन ये पास कब हुआ? August 18, 2025 में, लेकिन इफेक्ट वो भी पार्शियली इफेक्ट में आया है 1 जनवरी से. सो दीज आर द टू डिफरेंट थिंग्स. ओके, चलिए. ओके, हु इज ही? नेशनल कोच एक्रेडिटेशन बोर्ड, NCAB. ठीक है, ये बेसिकली है पुलेला गोपीचंद, अ वेरी फेमस बैडमिंटन प्लेयर. ठीक है, सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए, बहुत से एग्जाम्स में यही पूछा जा रहा है कि पुलेला गोपीचंद इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट. सो सबसे पहले एज यू कैन सी अ रैकेट इन हिज हैंड. ठीक है, तो ही इज अ बैडमिंटन प्लेयर. सो अ टास्क फोर्स लेड बाय, अच्छा क्योंकि ये हेड करेंगे NCAB को, इसीलिए ये करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है. कॉल फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द NCAB टू सेट national standards and accredited coaching institution. मतलब he wants along with some other members, ये चाहते हैं कि basically कुछ standard set होने चाहिए, especially related to coaching institutions because he himself is a coach. ठीक है, so the task force was tasked with reviewing the national coaching infrastructure. तो इनको जो head बनाया, इनकी basically force ने क्या किया, इनका टास्क ही था रिव्यू करना कि जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, सेंटर्स हैं, जो अलग अलग स्पोर्ट्स को बेसिकली यू नो उनकी नॉलेज को इम्पार्ट कर रहे हैं या स्पोर्ट्स पर्सन को प्रैक्टिस करवा रहे हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है. ठीक है, तो हालांकि इन्होंने एक बहुत ही रॉबस्ट, एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क भी क्या करा है, एडवाइस किया है, आप कह सकते हैं सजेस्ट करा है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को. ठीक है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को, क्योंकि ये चाहते हैं along with him, not only him, there are so many sports persons, so many people of India who wants to make India a leading sporting nation by 2047. So now see, the very important third information of the class is कि कब तक बेसिकली इंडिया की उम्मीद है कि लीडिंग स्पोर्टिंग नेशन बनने की, या टारगेट क्या सेट है. अगर आपसे बेसिकली पूछा जाए टारगेट क्या सेट है, सो द टारगेट इज 2047. ओके, so the next one is National Olympic Academy, NOA. Acha, can you remember or can you recall her? She is PT Usha, right? इनको पायोली एक्सप्रेस भी बोला जाता है. All right, so National Olympic Academy, the Indian Olympic Association, IOA, reactivated the NOA and named PT Usha as its president. ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि नेशनल ओलंपिक अकेडमी की प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है, सो द एथलीट PT Usha. All right, and PT Usha is a legendary athlete, as I told you, and was elected unopposed as the first woman president of the IOA. See, this is something really important. Okay, जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, इनकी जो सबसे आप कह सकते हैं ना फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी, वो कौन थी? PT Usha ही थी, और अनअपोज थी. किसी ने भी कोई किसी भी तरीके का यू नो डिसअपॉइंटमेंट या किसी भी तरीके का डिसअप्रूवल नहीं शो करा, और सबने एक मत के साथ इनको फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनाया था IOA का. IOA स्टैंड्स फॉर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन. ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखिएगा. इंटरनेशनल रिलेशंस कमिटी, देखिए, the Ministry of Youth Affairs and Sports advised all recognized national sports federation, जितनी भी इंडिया की नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है, उनको क्या सजेस्ट किया है या क्या एडवाइस करा है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने, to create committees on international relations to align India's sports engagement with global standards and make in India in sports. See, this thing is something really important. वैसे भी 2047 तक भारत के जो स्पोर्ट्स पर्सन है, या you know India itself wants to be the leading sport nation, and
अगर ये टारगेट हमें फुलफिल करना है तो कुछ रॉबस्ट स्टेप्स भी लेने होंगे. सो बेसिकली जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स है, उन्होंने जितने भी एनएसएफ हैं, जितने भी नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है, उन्हें सजेस्ट करा है कि मल्टीपल कमिटीज होनी चाहिए, ठीक है, जो कि इस पर्पस को सॉल्व करे टू अलाइन इंडिया स्पोर्ट्स एंगेजमेंट्स विद ग्लोबल स्टैंडर्ड्स. ठीक है, सिंपल सी बात है. लेट्स से जब भी आप देखते होंगे इंडिया अगर कॉमनवेल्थ में पार्टिसिपेट करता है, ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करता है, एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करता है, किसी भी टूर्नामेंट में या वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करता है, तो आपको उतने प्लेयर्स नहीं दिखाई देते होंगे, राइट, इंडिया के. और अगर एक अच्छा हैवी कंटिंजेंट जाता भी है तो इतने मेडल्स बैग नहीं कर पाता. तो कहीं ना कहीं वो जो स्टैंडर्ड है वो गैप हो रहा है, तो उसको मैच करना है. ठीक है स्टूडेंट्स, इसीलिए इसको ध्यान रखिएगा, इजी है. ओके, हु इज ही? ही इज महेंद्र सिंह धोनी, राइट, द लेजेंडरी क्रिकेटर. सो बजाज पुणे ग्रैंड टूर, ये क्या है देखते हैं इस करंट अफेयर को. फॉर्मर क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी was named the ambassador for this event. जनवरी में बेसिकली बजाज पुणे ग्रैंड टूर ने किसको एज एन एम्बेसडर, ठीक है, सिलेक्ट किया? एमएस धोनी को, विच इज इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल मल्टी स्टेज प्रोफेशनल रोड साइकिलिंग रेस. नाउ सी, दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट. अगर आपसे कोई पूछे, एग्जामिनर ऐसे भी तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, बजाज पुणे ग्रैंड टूर इज रिलेटेड टू, फिर वो फॉर्मूला 1 रेसिंग दे सकते हैं ऑप्शन में, फिर आपको वो दूसरा ऑप्शन दे सकते हैं वॉलीबॉल, ठीक है, देन दे से बास्केटबॉल, एंड देन इवेंचुअली द राइट आंसर विच इज साइक्लिंग, राइट. तो ये जो बजाज पुणे ग्रैंड टूर है, इट वाज सपोर्टिंग द साइक्लिंग रेस एज दे आर द फर्स्ट इंटरनेशनल मल्टी स्टेज प्रोफेशनल रोड साइक्लिंग होस्ट, यू कैन से, जिन्होंने ये रेस क्या की, होस्ट. ठीक है, इवेंट कितना था, कितने किलोमीटर का था? द 437 किलोमीटर इवेंट स्पैन्स 5 स्टेजेस. ठीक है, 5 स्टेजेस थी अक्रॉस द डेक्कन प्लेटू एंड द सह्याद्री रेंजेस. तो आपको पता भी होना चाहिए कि इवेंट का वेन्यू क्या था, कहाँ पे इवेंट कंडक्ट हुआ, जो डेक्कन प्लेटू और सह्याद्री रेंज वाला सेंट्रल इंडिया वाला जो एरिया स्टूडेंट्स, वहां पे. ऑल राइट, सो बी माइंडफुल ऑफ दिस फैक्ट. Moving on to the next information. I hope I am audible. All right. So Tata Mumbai Marathon TMM 2026. ठीक है. First of all, what's the name of the player? Because that's more important. It's Andre De Grasse, who was named the international event ambassador for the 21st edition of the marathon. जो TMM थी, सबसे पहले पूछा जाएगा उनके एम्बेसडर कौन है. ये इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन तो नहीं है, ठीक है. ही इज अ रिनाउंड, कनाडा से है, कैनेडियन ट्रैक एंड फील्ड एथलीट who specializes in the 100 मीटर, मतलब स्प्रिंटर है, और 100 मीटर एंड 200 मीटर स्प्रिंट्स इनकी स्पेशलाइजेशन है. ठीक है, he won multiple Olympics medals. ठीक है, TMM is an annual international running event which featured 42.195 kilometer, which is a full marathon, and also some half marathons and शॉर्ट रन्स. ठीक है, सो दो ही तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा. एक तो इन स्पोर्ट्स पर्सन की कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, कौन सा स्पोर्ट्स प्ले करते हैं, ही इज एन एथलीट, एज यू नो, ही इज अ स्प्रिंटर, एंड तीसरा पूछ सकते हैं कि टाटा मुंबई मैराथन के एम्बेसडर कौन थे. ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. न्यू चेस ग्रैंड मास्टर. ठीक है, सी देयर आर सो मेनी ग्रैंड मास्टर्स, राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट ग्रैंड मास्टर, आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट विच स्पोर्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट chess, as you can see in the picture also, right. So new chess grandmaster, what's the name, Aryan Varshney, became the 92nd Indian to earn the title of chess grandmaster. ठीक है, so सबसे पहला title we very well know, the one and only Vishwanath Anand. ठीक है, so first chess grandmaster of India was Vishwanath Anand in 1988. ठीक है, और वो रह चुके हैं 5 times वर्ल्ड चैंपियन. लेकिन हमें 92nd का भी नाम याद होना चाहिए, एंड द नेम इज आर्यन वार्ष्णे. ऑल राइट स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन. आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप. अब स्टूडेंट्स को एक
बेसिकली गलती करते हुए देखा है कि वो इतनी जल्दबाजी में रहते हैं कि वो पढ़ते ही नहीं है कि बेसिकली दे टॉकिंग अबाउट अंडर 19, ठीक है। तो द आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप, इंडिया कंटिन्यूड इट्स डोमिनेंस बाय क्लिंचिंग अ रिकॉर्ड ऑफ 6th टाइटल, ठीक है। तो इंडिया का 6th टाइटल है, ठीक है। इंग्लैंड को डिफीट करा है, 100 रन से डिफीट करा है, ठीक है। और ये जो बेसिकली जीत तो इंडिया गई एज यू कैन से, बट कई बार होस्ट पूछते हैं, कई बार वेन्यू पूछते हैं। सो कीप वन थिंग इन माइंड, द होस्ट वाज जिम्बाब्वे एंड नमीबिया। आयुष मात्रे ये जो अंडर 19 मेंस क्रिकेट टीम है उसके कैप्टन है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपके लिए, इन 2000 इंडिया वन द फर्स्ट आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो इंडिया ने सबसे पहला अंडर 19, बिकॉज ये तो 6th टाइटल है, राइट। तो सबसे पहला कब जीता? ईयर 2000 में जीता, ठीक है। सो सारी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे दी हुई है, स्टैटिक जीके हो या करंट अफेयर हो। नाउ इट्स योर वर्क टू रिवाइज ऑल ऑफ देम, ओके। So the next one is Women's Premier League, which is known as WPL. ठीक है, अब देखते हैं कौन विनर है 2026 का। In domestic franchisee cricket, the Royal Challengers Bangalore, exactly, RCB का ये 2nd title है, ठीक है। They secured their 2nd WPL title by defeating Delhi Capitals. Now this is something very important कि किसने हराया, किसको हराया, ठीक है। This is very important. और इफ आई टॉक अबाउट दिस मेंस आईपीएल टीम आरसीबी, तो उनके पास एक ही टाइटल है, ठीक है, जो इन्होंने लास्ट ईयर क्लिंच किया था। बट इफ आई टॉक अबाउट दी विमेंस प्रीमियर लीग, और अगर मैं आरसीबी की बात करूं तो बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस है। 2nd टाइटल दिल्ली कैपिटल्स को डिफीट करके, ठीक है, क्लिंच किया है। और ये था 4th एडिशन किसका? WPL का, ठीक है। चलिए information number 15, or you can say the question number 15. First bowler to reach 700 T20 wickets. Who is the first bowler? It's Rashid Khan. अच्छा, कौन से बेसिकली कंट्री के हैं? लिखा भी हुआ है इनके जर्सी में, ठीक है, अफगानिस्तान, ठीक है। एंड फर्स्ट बॉलर टू रीच 700 T20 विकेट्स। मतलब देखिए सर्किट भी तो मल्टीपल है ना क्रिकेट के, इफ आई टॉक। सो एक तो है 50 ओवर्स का, राइट, जिसको हम वनडे इंटरनेशनल बोलते हैं, ओडीआई। फिर होता है T20, 20 ओवर्स का ही होता है। फिर एक होता है टेस्ट मैच। बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट T20, ठीक है। तो राशिद खान ने क्या रिकॉर्ड ब्रेक करा है? ही बिकम्स द फर्स्ट बॉलर टू रीच 700 विकेट्स, ओके, 700 विकेट्स, अ बिग थिंग ड्यूरिंग द अफगानिस्तान वर्सेस यूएई। ये भी पता होना चाहिए, अफगानिस्तान यूएई के साथ क्रिकेट मैच प्ले कर रही थी, ठीक है। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप इन दिल्ली, ठीक है। मतलब आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप जो कि दिल्ली होस्ट कर रहा था, ठीक है। ही इज फ्रॉम अफगानिस्तान एंड इट इज राइट आर्म लेग स्पिन बॉलर, ठीक है। हालांकि इवेंचुअली इंडिया वन द सीरीज, यू वेरी वेल नो, ठीक है। बहुत करंट अफेयर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से। मुझे ऐसा लगता है अगर कोई स्टूडेंट करंट अफेयर फॉलो नहीं भी करता तब भी उसको पता होना चाहिए कि रीसेंट चैंपियंस ट्रॉफी भी इंडिया ने, और जो T20 वर्ल्ड कप है वो भी इंडिया ने जीता है, और इंडिया के थर्ड टाइटल है इन ईच ऑफ द इवेंट, ठीक है। सो या इंपॉर्टेंट। ओके, संतोष ट्रॉफी, फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जामिनर सीधे पूछेगा, इतनी डेप्थ में नहीं जाते हैं जब स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स आते हैं, राइट। तो संतोश ट्रॉफी जैसे अभी हमने पढ़ी, विजय हजारे ट्रॉफी दैट वाज रिलेटेड टू क्रिकेट, रणजी ट्रॉफी अगेन रिलेटेड टू क्रिकेट। लेकिन अगर मैं बात करूं संतोष ट्रॉफी की, व्हाट इफ आई टॉक अबाउट डूरंट कप? सो दीज ट्रॉफीज आर रिलेटेड टू फुटबॉल, राइट। सो इन इंडिया प्रीमियर सीनियर मेंस नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप, द सर्विसेज टीम कौन जीत गया, किसने टॉप किया? सर्विसेज टीम ने संतोष ट्रॉफी 2025-2026 proved their mettle once again by securing their 8th overall title. इनका पहला या दूसरा नहीं, 8th टाइटल है किसका? सर्विसेज टीम का, ऑल राइट। और डिफीट किसे करा है? केरला को इन दी 79th नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप। द संतोष ट्रॉफी स्टार्टेड इन द ईयर 1941। यू कैन सी कितनी ज्यादा ओल्ड ट्रॉफी है, बेसिकली 1941 में स्टार्ट हो गई थी। लेकिन मैं आपको बता दूं एशिया का ओल्डेस्ट टूर्नामेंट है या ओल्डेस्ट कप है फुटबॉल का डूरंट कप, ओके। ये एग्जाम में कई बार आता है, दैट विच इज द
or which one is the Asia's oldest cup in football? So the answer is Durand Cup. Okay. What's the next information? SAFF. See, the full form of SAFF is South Asian Football Federation. All right. South Asian Football Federation Under 19 Women's Championship 2026. Let's see कौन जीता कौन हारा. The Indian Under 17, ठीक है, women's football team. देखिए वैसे तो Under 19 event था, but there were some players who were under 17 as well, which is a good thing. ठीक है, achieved regional glory. इन्होंने बांग्लादेश को defeat किया है. किसने? Indian team ने. ठीक है, to win the 7th edition of the champions, or you can say the women's championship for football. ठीक है, चलिए तो साफ का फुल फॉर्म एक तो याद रखिएगा. और इंडिया जीती, डिफीट किसे करा? बांग्लादेश को. All right, now talking about the Winter Olympics, which is very important. ठीक है, Olympics in itself is quite important than Commonwealth, then Asian Games. ठीक है, so internationally, Norway dominated the ice and snow, securing the top position in the medal tally at the 25th Winter Olympic Games. सबसे पहले कौन सा एडिशन था? 25th था. ठीक है, विंटर ओलंपिक्स गेम्स का. अब वेन्यू की बात करते हैं. मिलानो. ठीक है, कॉर्टिना. व्हाट्स द वेन्यू? मिलानो, कॉर्टिना. The games featured a sleek white emblem logo named Futura. ठीक है, आप इसको मैथ्स कट भी कंसिडर कर सकते हैं. Drawing the number 26 in a single brushstroke. While the official motto, what was the official motto? It's your vibe. ये मोटो किसका था? विंटर ओलंपिक्स का था. ठीक है, the official mascots bringing cheer to the events for two Stott siblings, टीना एंड मिलो. अच्छा, इन्होंने एम्ब्लेम भी अलग लिख रखा है, फ्यूचूरा. कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें मैस्कट्स नहीं तो एम्ब्लेम्स होते हैं, बट इस स्पोर्टिंग इवेंट में एम्ब्लेम भी था, मैस्कट भी था और एक मोटो भी था. तो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ है. विनर कौन था? नॉर्वे. नॉर्वे हैप्पीनेस इंडेक्स में भी स्टूडेंट्स हमेशा टॉप रैंकर्स ही रहा है. ठीक है, फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, these are some countries which are always on the top when it comes to the happiness index. Okay, all right, moving on to the next question, which is खेलो इंडिया winter games. अभी तो बात हुई थी ओलंपिक या विंटर ओलंपिक्स की, अब हम बात कर रहे हैं इंडिया के ही नेशनल इवेंट के, जिसको खेलो इंडिया बोलते हैं. एंड हियर आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट खेलो इंडिया विंटर गेम्स. सर्किट्स बहुत सारे ऐसी खेलो इंडिया के, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है. ठीक है, सो ऑन दी डोमेस्टिक फ्रंट हरियाणा ने टॉप किया है खेलो इंडिया विंटर गेम्स में. हरियाणा वैसे भी स्पोर्ट्स कल्चर, या मैं अगर स्पोर्ट्स की बात करूं, काफी आगे रहते हैं. ठीक है, और जो प्लेयर्स हैं हरियाणा के, वो भी बहुत ही स्पोर्ट्समैनशिप के साथ हमेशा कहीं ना कहीं अपनी जगह बना ही लेते हैं टॉप में. ठीक है, दी 6th एडिशन कौन सा था? खेलो इंडिया विंटर गेम्स का 6th एडिशन था. ठीक है, इन्होंने 4 गोल्ड, 1 सिल्वर एंड 2 ब्रॉन्ज मेडल्स अपने नाम करे. ठीक है, सो टोटल 7 मेडल्स. द फर्स्ट KIWG पहला खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ पे होस्ट हुआ था? गुलमर्ग में. गुलमर्ग इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस इन जम्मू एंड कश्मीर 2020 में. ऑल राइट स्टूडेंट्स, ये सारा डेटा आप एक बार गो थ्रू करिए, इंपॉर्टेंट है. Okay, so the next information is Abu Dhabi Masters 2026. Okay, the Open Master Games Abu Dhabi made history as first ever major Masters multi-sport event to be hosted in West Asia. देखिए, मैंने किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट का इसीलिए नाम नहीं लिया बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे स्पोर्ट्स खेले गए इस अबू धाबी मास्टर्स 2026 में. ठीक है, ये जो ओपन मास्टर गेम्स थे वो पहली बार, ठीक है, मेजर मास्टर्स मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट जो कि होस्ट कहाँ हुआ? वेस्ट एशिया. इससे पहले कभी वेस्ट एशिया में होस्ट नहीं हुआ था. ठीक है, 10 डे का मल्टी स्पोर्ट टूर्नामेंट था. ऐसा नहीं था कि 2-3 दिन ही ये इवेंट चले, पूरे 10 डेज. इट बॉट ओवर, देखिए ना कितने ज्यादा स्पोर्ट्स पर्सन ने पार्टिसिपेट करा. 25,000 स्पोर्ट्स पर्सन वर देयर. ठीक है, और 30+ थे मोस्टली. ठीक है, एंड फ्रॉम 92 नेशंस. ठीक है, तो यूएई में करीब 92 नेशन से 25,000
प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट करा अबू धाबी मास्टर्स 2026 में, जहां पे मल्टीपल इवेंट्स हुए, स्पोर्टिंग इवेंट्स हुए, ठीक है। वो आपको डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको 2-3 चीजें याद रखनी है कि पहली बार होस्ट किया है वेस्ट एशिया ने, कितने प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट करा और वेन्यू क्या था। इससे ज्यादा एग्जामिनर आपसे नहीं पूछेंगे। दिल्ली खेल महाकुंभ, ठीक है, जैसा कि लग ही रहा है नाम से कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होगा। सो दिल्ली लॉन्च्ड इट्स इनॉग्रल, दिल्ली ने अपना पहला, इनॉग्रल मतलब होता है मेडन या फर्स्ट, मल्टी स्पोर्ट इवेंट विद अ वाइब्रेंट मैस्कट नेम रणवीर, ठीक है। मैस्कट का नेम है रणवीर, और ये दिल्ली ने पहली बार अपना इनॉग्रल मल्टी स्पोर्ट इवेंट लॉन्च किया, सिंबलाइजिंग द करेज, ऑलराइट, एंड एनर्जी ऑफ यूथ। Former Indian cricketer Shikhar Dhawan ने basically was appointed as the brand ambassador, मतलब शिखर धवन इस पूरे इवेंट के ब्रांड एम्बेसडर। यू कैन सी इट्स रणवीर, ठीक है। रणवीर क्या है? एक लायन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज रिलेटेड टू द नेशनल दिव्यांगजन क्रिकेट, ठीक है। सो ये जो स्पोर्ट्स फेस्टिवल हुआ जिसका नाम था नेशनल दिव्यांगजन क्रिकेट, इट इज अ सिग्निफिकेंट इवेंट फॉर द इंक्लूसिव स्पोर्ट्स, ठीक है। और यहाँ पे वेन्यू क्या था, होस्ट कौन था? भोपाल एमपी था, द मध्य प्रदेश, आई मीन द सीएम, एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू द नेम ऑफ द सीएम, डॉक्टर मोहन यादव। उन्होंने इनॉग्रेट करा इस इवेंट को। इसकी थीम क्या थी? नॉट आउट एट द रेट 100, ठीक है, दैट वाज द थीम। एंड 350 स्पेशली एबल्ड या दिव्यांग प्लेयर्स पार्टिसिपेटेड फ्रॉम 25 वेरियस स्टेट्स। इन्होंने क्रिकेट खेला, इनफैक्ट एक रिकॉर्ड भी ब्रेक करा है, 100 आवर्स कॉन्टिन्यूसली इन्होंने, मतलब अलग अलग प्लेयर ने आके क्या करा है, क्रिकेट को खेला है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं खुद में एक रिकॉर्ड है। सो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, स्टूडेंट याद रखिएगा, ठीक है। होस्ट कौन था ये याद रखिएगा बेसिकली। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, ऑस्ट्रेलियन ओपन। सी ग्रैंड स्लैम्स के बारे में आपने जरूर सुना होगा, टेनिस में हमेशा क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, बिकॉज न्यूज में भी रहता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ आई टॉक अबाउट द ग्रैंड स्लैम्स, इफ आई टॉक अबाउट द 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स, द वेरी फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन ओपन, then comes the French Open, then comes the Wimbledon, and eventually in the end of the year US Open। तो मतलब हर साल ये 4 इवेंट्स टेनिस के खेले जाते हैं, और साल की शुरुआत में ही खेला जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है। फ्रेंच ओपन का भी इंफॉर्मेशन इसलिए नहीं है बिकॉज अभी तक खेला नहीं गया। सो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 इन द फर्स्ट ग्रैंड स्लैम ऑफ द ईयर, जैसा कि मैंने बोला ये तो पहला ही ग्रैंड स्लैम है, 3 अभी बाकी हैं। किसने जीता है? इफ आई टॉक अबाउट मेंस, कार्लोस एल्कराज, ठीक है, इन्होंने जीता है मेंस सिंगल टाइटल्स, और एलेना रायबिकीना, वेरी इंपॉर्टेंट, इन्होंने जीता है विमेंस, ठीक है। और इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, मुझे ऐसा लगता है जरूर आएगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905, सोचिए कितना पहले मेलबर्न में क्या हो गया था, शुरू हो गया था, ठीक है। तो ये 2 ही नाम आपको याद रखने हैं। मैंने हालांकि आपको ऑन इन्फॉर्मेशन में बताया हुआ है कि किसने किसको डिफीट किया, नीचे आप वेट करिए थोड़ा, ठीक है। सो अब बात कर लेते हैं बैडमिंटन की, बिकॉज स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स है, अलग अलग स्पोर्ट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इंडियन शटलर, अच्छा आपसे अगर एग्जामिनर पूछे देविका सेहवाग is related to which sport? So the right answer is badminton, ठीक है। She made headlines by winning her first BWF World Tour title in Thailand। इन्होंने पहला अपना BWF World Tour title जीता है बैडमिंटन में, ठीक है, जिसका नाम था थाईलैंड मास्टर्स सुपर 300 टूर्नामेंट। ऑब्वियसली थाईलैंड नाम इवेंट के ही नाम में है, तो ये इवेंट्स भी बैंकॉक, which is the capital of Thailand, वहीं पे हुए, ठीक है। Becoming the 3rd Indian woman to achieve this feat. Additionally, the 6th edition of Badminton Asia Team Championship was scheduled to take place in, और जो 6th edition होगा वो कहाँ पे होगा? किंगडाओ, चाइना में होगा, ठीक है। सो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। फिलहाल इंडिया से देविका सेहवाग जीती है, ठीक है। और अब ये पार्टिसिपेट करेंगी किस पे? जो इवेंचुअली होगा एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप, ठीक है, चाइना में। ओके, so Pro Wrestling League, now this important information is related to PWL, ठीक है, which is Pro Wrestling League। wrestling की बात कर लेते हैं। The हरियाणा थंडर्स, important, हरियाणा थंडर्स ने डिफीट करा है किसको? बेसिकली दिल्ली दंगल वॉरियर्स को, ठीक है। ये नेम्स हैं टीम्स के, ठीक है। और
इनको मिला है 2026 का PWL विच इज द प्रो रेसलिंग लीग टाइटल। विक्ट्री का यहाँ पे स्कोर भी लिखा हुआ है 5-4। ऑलराइट स्टूडेंट्स, द प्रो रेसलिंग लीग स्टार्टेड इन द ईयर 2015। कब शुरू हो गई थी ये? 2015 में। द वेन्यू ऑफ PWL 2026 वाज नोएडा। अच्छा, इंडिया में ही था वेन्यू, कहाँ पे? नोएडा। ठीक है, नोएडा के इंडोर स्टेडियम में। ओके, अब शूटिंग की बात कर लेते हैं। ऑब्वियसली कुछ क्वालिफायर्स राउंड हो रहे थे कुछ नेशनल या इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए, बट नेम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कुछ स्पोर्ट्स पर्सन के। Looking ahead of 2028 Los Angeles Olympics, it was announced that India will host the Asian Rifle Pistol Championship 2027 in New Delhi. Okay, this time शायद आपको किसी शूटर का नाम नहीं याद करना, बट इंडिया होस्ट करने वाला है, तो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। इंडिया क्या होस्ट करेगा? एशियन राइफल या पिस्टल चैंपियनशिप 2027 में। कहा? न्यू दिल्ली में। तो वेन्यू याद रखना है। कब होंगे इवेंट? नेक्स्ट ईयर होंगे। ठीक है, इसमें भी आपने देखा होगा राइफल भी होती है, पिस्टल भी होती है, डिपेंड्स, दोनों के बेसिकली कुछ इवेंट्स होते हैं। ठीक है, और दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, बस इतना याद रखना है इसका वेन्यू, क्योंकि इंडिया है तो इम्पोर्टेंट है। ई स्पोर्ट्स, ठीक है, एक मैसिव स्टेप लिया है। ठीक है, क्योंकि जो आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो ये इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट है या जो ई स्पोर्ट्स हैं, ये भी बहुत ज्यादा क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे फ्लरिश कर रहे हैं, विच इज गुड थिंग, राइट। और कंपेटिटिवनेस को और इंक्रीज करने के लिए, माइंड स्पोर्ट्स को और ज्यादा बेसिकली डेवलप करने के लिए, द ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप फाउंडेशन which is known as EWCF officially included chess as one of the 16 competitive titles for the inaugural esports national cup 2026। देखिए 2026 में पहली बार होगा esports national cup, और उसमें सिंपल सी बात है, अगर ये कोई टूर्नामेंट होगा तो उसमें अलग अलग स्पोर्ट्स होंगे, उसमें 16 स्पोर्ट की तरह जोड़ा गया है चेस को, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इन फैक्ट ये जो इवेंट्स हैं, बिकॉज अब तो हम करंट अफेयर कर रहे हैं तो ये हो भी चुके हैं, इनका वेन्यू क्या था? नहीं अभी नहीं हुए, टू बी हेल्ड लिखा हुआ है, राइट। तो ये कब होंगे? अपकमिंग मंथ्स में, और रियाद सऊदी अरेबिया में होंगे। ठीक है, क्या किस स्पोर्ट को ऐड करा गया है? चेस को ऐड करा गया है, ये याद रखिएगा। Okay, who is she? She is Smriti Mandhana, right? The very famous female cricketer. So BBC Indian Sportswoman of the Year goes to the Indian cricket star Smriti Mandhana. ठीक है, और ये ऑनर किसने दिया है? ये ऑनर दिया है BBC इंडियन स्पोर्ट्स, BBC you can say। ठीक है, और BBC के इस इवेंट का नाम था BBC इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द ईयर, या इस अवार्ड का नाम था। ठीक है, दिव्या देशमुख को मिला है BBC इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, प्रीति पाल को मिला है BBC पैरा स्पोर्ट्सवुमन, और अंजलि भागवत को मिला है BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए सारा। Moving on to the next information, खेलो इंडिया मिशन। जैसा कि मैंने बोला, खेलो इंडिया गेम्स 2018 में ही शुरू हो गए थे। What was the sole purpose? To uplift the sportsmanship in India, to support and to give an impetus or push to the sports person of India. Khelo India mission, highlighting the government's focus on athletic development. The union budget 2026-7 and 27 announced the Khelo India mission to strengthen India's sports ecosystem through infrastructure creation, talent development and the promotion of sports culture। तो भारत में स्पोर्ट्स कल्चर को फ्लरिश करने के लिए बेसिकली ये जो यूनियन बजट है 2026-27 का, उसने अनाउंस करा है कि एक मिशन रन करेंगे, खेलो इंडिया मिशन। बस इतना ध्यान रखना है, इसके बारे में इवेंचुअली आपको बाद में बताया जाएगा करंट अफेयर्स में, बिकॉज अभी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, अभी तो सिर्फ अनाउंसमेंट हुई है कि खेलो इंडिया मिशन होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए एक डेडिकेटेड बजट होगा। चलिए रणजी ट्रॉफी की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था स्टूडेंट्स की, जैसे आपकी विजय हजारे ट्रॉफी है, वैसे ही क्रिकेट की एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रॉफी है जिसका नाम है रणजी ट्रॉफी। ठीक है, इसमें भी 25-26 में देखते हैं कौन विनर रहा।
वहां पे विदर्भा को मिला था पहला टाइटल, राइट, सौराष्ट्र को डिफीट करके। यहाँ पे कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर को मिला है फर्स्ट एवर टाइटल, इन्होंने डिफीट करा है कर्नाटका को। ठीक है, यहाँ पे स्टेट्स के बीच कंपटीशन होता है। जेएनके बिकेम ओनली द 10th टीम इन 92 years टू अचीव दिस रेयर फीट, मतलब इतना टाइम 92 years में, ठीक है, पहली बार इस फीट को अचीव किया है जेएनके ने। सीलिंग विक्ट्री विद अ मैसिव फर्स्ट इनिंग्स लीड, क्योंकि ऐसा नहीं है, जम्मू कश्मीर तो पहली बार जीती है, और भी टीम्स जीतती थी, बट ये जो मैसिव फर्स्ट इनिंग्स लीड थी वो कभी नहीं थी, वो 92 years बाद देखी गई है। ठीक है, बहुत ही रेयर फीट है। द रणजी ट्रॉफी इनॉग्रल इवेंट हेल्ड इन 1934, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। हर स्पोर्ट्स के नीचे मैंने ईयर दिया हुआ है कि कब वो इवेंट स्टार्ट हुआ, स्टूडेंट्स प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। तो 1934 में शुरू होती है रणजी ट्रॉफी, वेरी ओल्ड, राइट। चलिए, आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप, सी आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस ओनली, I know that you people know this, but this needs to be discussed again because this is quite important. We have covered it, I have covered it in my earlier videos as well, but see, let's look into it one more time. ICC Men's T20 World Cup 2026, सबसे पहले इंडिया के जो संजू सैमसन जो हैं, उनको मिला है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। ही इज एन अमेजिंग प्लेयर, वेरी काम, कंपोज्ड, राइट। इंडिया इज द चैंपियंस ऑफ द 2026 आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप, सिक्योरिंग देयर, आई टोल्ड यू, थर्ड टाइटल है, चैंपियंस ट्रॉफी का भी थर्ड टाइटल है, ठीक है, याद रखिएगा, जो इंडिया ने जीता है बाय डिफीटिंग न्यूजीलैंड। किसको डिफीट करा है? न्यूजीलैंड को। कितने रन से? एक मैसिव स्कोर से बेसिकली डिफीट किया है इंग्लैंड को, 96 रन से, ठीक है, बहुत अच्छा एक स्कोर वो करा था न्यूजीलैंड के सामने, ठीक है। सो इन द फाइनल हेल्ड ऑन 8 मार्च को हुआ और इवेंचुअली जीत गए। और वेन्यू भी क्या था? इंडिया, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम इन अहमदाबाद, बेसिकली यहाँ पे कंक्लूड होती है मेंस T20 वर्ल्ड कप, ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है, इसकी कैपेसिटी है समवेयर अराउंड 1,30,000, ठीक है। तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं, ये स्टैटिक टेकअवेज भी खुद नोट करते रहिएगा, कहीं से भी आपको मिले, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नमन अवार्ड्स की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। वैसे तो आप देख के समझ गए होंगे, आपके सामने कुछ क्रिकेटर्स हैं। नमन अवार्ड्स इज रिलेटेड टू क्रिकेट, पहले तो ये याद रखिएगा, ठीक है। अगर एग्जामिनर पूछे, बाकी भी ऑप्शन में 3 कोई भी स्पोर्ट पर दे सकते हैं, लेट्स से रेसलिंग, फुटबॉल, बैडमिंटन, बट नमन अवार्ड्स आर रिलेटेड टू क्रिकेट ओनली, ऑलराइट। क्रिकेट लेजेंड्स रॉजर बिनी एंड राहुल द्रविड़, ठीक है, रॉजर बिनी और राहुल द्रविड़ वर ऑनर्ड विद द कर्नल C.K. नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। नमन अवार्ड्स में किन दो को कर्नल C.K. नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? वो थे राहुल द्रविड़ और रॉजर बिनी, ठीक है, वेरी टू अमेजिंग प्लेयर्स, राइट। एंड द BCCI नमन अवार्ड्स 2026 सेलिब्रेटेड इंडियाज क्रिकेट स्टार्स इन न्यू दिल्ली। यहाँ पे शुभमन गिल को मिला है पॉली उमरीगर अवार्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर पूछेगा पॉली उमरीगर अवार्ड इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, सो बी माइंडफुल क्रिकेट। स्मृति मंधना को भी मिला है women's honor, while Rahul Dravid, Raj Binny and Mithali Raj, again related to cricket, women's cricket team, ठीक है, receive lifetime achievement awards। तो किन 3 को मिला lifetime achievement? Raj Binny को, राहुल द्रविड़ को और मिथाली राज को, ठीक है। She was, I mean, Mithali Raj used to play, all right, for the women's cricket team. The next one is IPL franchise acquisition। ये अब तो शुरू हो गया IPL, आपको पता है 31st of May को eventually end भी हो जाएंगे, ठीक है। आपको एक नई टीम भी मिल जाएगी जो जीती है IPL 2026, लेकिन क्योंकि हम कुछ पुराने मंथ्स के करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है IPL फ्रेंचाइजी एक्विजिशन को लेके। कंसोर्टियम इंक्लूडिंग द आदित्य बिरला ग्रुप, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, बोल्ड वेंचर्स एंड ब्लैकस्टोन, इतने थे। ये बेसिकली इन्होंने एक्वायर कर लिया है RCB को, ठीक है। कितने में? $1.78 बिलियन में। सो अ बिग थिंग, इंपॉर्टेंट है, बस ये नाम दिमाग में रखिएगा। आदित्य बिरला ग्रुप है, उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप है, बोल्ड वेंचर्स है और ब्लैकस्टोन है, ठीक है। और ये बस अमाउंट याद रखिएगा कि कितने में बेसिकली इन्होंने इसको बाय किया है, दैट इज $1.78 बिलियन। चलिए, खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स, आई एम टॉकिंग अबाउट KIWG, ठीक है, सॉर्ट ऑफ रिपीटेड बट दिस टाइम द डेटा इज डिफरेंट।
ठीक है, पहले आपको वेन्यू बताया गया था. द इंडियन आर्मी सक्सेसफुली डिफीटेड टीम चैंपियनशिप टाइटल, 6th एडिशन था ये, तो हमने ऊपर ही कवर करा था स्टूडेंट. विनर कौन है? इंडियन आर्मी. अच्छा ठीक है, रिपीट ही हो गया ऑलमोस्ट. देखिए सर्विसेज ही तो विनर थी. ठीक है, एनीवे आगे इंफॉर्मेशन देखते हैं. खेलो इंडिया विंटर गेम्स KIW आर द नेशनल लेवल मल्टी डिसिप्लिनरी ग्रास रूट विंटर गेम्स. विंटर्स में होते हैं. इवेंट्स इंक्लूड स्कीइंग होती है, अल्पाइन स्कीइंग, ठीक है, नॉर्डिक स्कीइंग, स्नो रग्बी, आइस स्टॉक स्पोर्ट्स, स्नो बेसबॉल, माउंटेनियरिंग, स्नो शू, रनिंग, आइस हॉकी, फिगर स्केटिंग एंड स्पीड स्केटिंग. ठीक है, सो ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं, इस पे ज्यादा हम डिस्कशन नहीं करेंगे. ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट वन which is Khelo India Tribal Games. Now this current affair is truly important because पहली बार Khelo India Tribal Games inaugurate हो रहे हैं. So this question is very important. The inaugural edition of these games will be held in छत्तीसगढ़. सबसे पहले वेन्यू पूछा जाएगा, तो जो छत्तीसगढ़ स्टेट है उसने ऑर्गेनाइज करे खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स. लेकिन विनर कौन था? द विनर वाज कर्नाटका. ऑलराइट, कई बार एग्जामिनर आपसे रैंक पूछ सकते हैं उस स्टेट की जिसने होस्ट किया है किसी पर्टिकुलर स्पोर्टिंग इवेंट को. सो इफ आई टॉक अबाउट छत्तीसगढ़, तो वो मेडल टैली पे कौन सी रैंक पे था? 9th रैंक पे था. ऑलराइट, सो दिस इंफॉर्मेशन इज ऑलरेडी हियर. मैस्कट क्या था? ये रहा मैस्कट आपके सामने, एंड इट इज मोरवीर. ऑलराइट, इट्स द ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ द खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026. लेट्स प्रोसीड with the next information. World Para Athletics, that is a WPA. All right, it's basically a Grand Prix. इसको Grand Prix नहीं pronounce करते students, इसको हम Grand Prix pronounce करते हैं. If I talk about World Para Athletics Grand Prix 2026, सबसे important है venue. Venue was New Delhi. और इसीलिए ये current affair इतना important है क्योंकि इंडिया ही venue था वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स का. ठीक है, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज इंडियन पैरा एथलीट शैलेश कुमार. अब ये नाम आपको ध्यान रखना है बिकॉज शैलेश कुमार गोल्ड लेकर आए हैं मेंस हाई जंप में. ठीक है, व्हाट्स द कैटेगरी? T63. ऑलराइट, एट द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री इन न्यू दिल्ली. इनकी जंप, सॉरी जस्ट गिव मी अ मिनट. यहाँ पे बेसिकली रिकॉर्ड भी मेंशन है कि जो इन्होंने हाई जंप की वो कितने मीटर थी? 1.84 मीटर. ऑलराइट, चलिए, और अब ये क्या करेंगे? जितने भी इंटरनेशनल इवेंट्स होंगे जैसे कि एशियन पैरा गेम्स, उसके लिए कंपीट करेंगे फर्दर. मूविंग ऑन to the next information about World Boxing Futures Cup 2026. Indian boxers secured a total of 5 medals. ये जो World Boxing Futures Cup था, इसमें बेसिकली इंडिया के बॉक्सर्स ने पार्टिसिपेट करा और इंडिया को 5 मेडल्स मिले. ठीक है, कौन कौन से थे वो 5 मेडल्स? बेसिकली जिसमें एक गोल्ड था, 3 सिल्वर मेडल्स थे और एक ब्रॉन्ज मेडल था. अगर आपसे कोई वेन्यू के बारे में स्टूडेंट्स पूछे, द वेन्यू वाज बैंकॉक. ठीक है, एंड गोल्ड कौन लेकर आए? चंद्रिका पुजारी. सो ये बेसिक सी डिटेल्स हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए. इनका कैटेगरी थी 51 kg बॉक्सिंग. ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन व्हिच इज the World Indoor Athletics Championship. Now this question is important because India में इससे पहले कभी भी World Indoor Athletics Championship नहीं हुई और 2028 में होगी. ठीक है, इंडिया में, वो भी कहाँ? कलिंगा इंडोर एथलेटिक्स स्टेडियम. ठीक है, कलिंगा और if I talk about Bhubaneswar, which is the venue, it's in Odisha. You must be knowing that. ठीक है, the event marks India's first time. See, as I already told you, to host a global indoor athletics competition. ठीक है, इससे पहले हमेशा आउट ऑफ इंडिया ही हुए हैं, जब भी हुए हैं, तो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस है. मार्च में ये होंगे 28 में. ठीक है, मतलब मंथ भी अनाउंस कर दिया, अभी डेट्स अनाउंस नहीं करी.
The event will feature 26 events across 3 days. मतलब basically 26 events होंगे जिसमें 13 events होंगे फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन के और 13 होंगे मेल स्पोर्ट्स पर्सन के. ठीक है, तो चलिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है. This is about the Cycling League of India. सबसे पहले साइकिलिंग लीग ऑफ इंडिया 2026 was planned at गांधीनगर गुजरात, बट लेटर बेसिकली वेन्यू में थोड़ा सा चेंज किया गया. स्टेट तो अभी भी वही है गुजरात, बट द प्लेस इज अहमदाबाद. Ahmedabad is set to host the world's first franchisee-based road cycling league. In a first for Indian cycling, a franchisee-based league is being planned in November. अभी नहीं हुई है, अभी सिर्फ करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है बिकॉज मंथ अनाउंस हुआ है. The month is November this year with the sports minister. कौन है हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर? मनसुख मांडविया. ठीक है, सो एक इनिशिएटिव है. देखिए कभी भी कोई इवेंट जब इंडिया में या किसी इंडियन सिटी में प्लान होता है, ऑर्गेनाइज होता है, तो क्वेश्चन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ऑलराइट, सो बी माइंडफुल. एंड with that the information number 40 or the current affair 40 is about जापान. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. देखिए अभी तक इंडिया और जापान बराबरी में था. ठीक है, सबसे पहले एशियन गेम्स 1951 में होस्ट किए थे इंडिया ने. इंडिया में भी कहा? न्यू दिल्ली में. और फिर इंडिया ने दोबारा 1982 में ऑर्गेनाइज करे एशियन गेम्स. जापान ने भी पहली बार जब होस्ट की थी तो वो सिटी थी टोक्यो 1958 में, और हिरोशिमा में भी जापान ने 1994 में एशियन गेम्स को बेसिकली सेलिब्रेट किया था, होस्ट किया था. लेकिन अब जापान इंडिया से आगे निकल गया है. क्यों? क्योंकि अब जापान में तीसरी बार होने जा रहे हैं नगोया में 20th एशियन गेम्स. सी दिस इज द करंट अफेयर. अभी नहीं शुरू हुए हैं, सितंबर में होंगे. ठीक है, और 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक के इवेंट्स होंगे. ठीक है, बस याद इतना रखना है. वेन्यू क्या है अभी एशियन गेम्स का? सबसे पहला वेन्यू क्या है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है. लेट्स सी द नेक्स्ट वन, इंडियन ओपन 2026. अब यहाँ पे हम स्क्वॉश की बात करेंगे. एग्जाम में एक ही क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस स्लाइड से, कि अनाहत सिंह एंड अभय सिंह ये दोनों कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? स्क्वॉश. अब इनके बारे में एग्जाम में इसीलिए आएगा बिकॉज इन्होंने अपनी जगह बनाई. अभय सिंह ने तो जीता है मेंस टाइटल ऑफ इंडियन ओपन 2026 और अनाहत ने जीता है विमेंस टाइटल. अब एग्जामिनर ट्विस्ट करके भी क्वेश्चन दे सकते हैं कि जो इंडियन ओपन है, इज इट रिलेटेड टू बैडमिंटन, इज इट रिलेटेड टू फुटबॉल, बॉक्सिंग और स्क्वॉश? सो द राइट आंसर इज स्क्वॉश. ठीक है, तो ऐसे प्रिपेयर करने होते हैं स्टूडेंट्स करंट अफेयर्स. द नेक्स्ट वर्ड इज रिगार्डिंग मयंक चक्रवर्ती. ठीक है, अब देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है. अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया था 92nd ग्रैंड मास्टर के बारे में. अब 94th इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहले बनते हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन के. ठीक है, जो कि क्या बन चुके हैं? इंडिया के ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं. फर्स्ट थे 1998 में, फर्स्ट थे 1988 में विश्वनाथ आनंद. ऑलराइट, सो इनको याद करिएगा. इनका नाम स्पेशली बिकॉज ये नॉर्थ ईस्टर्न के पहले ग्रैंड मास्टर है. चलिए हॉकी इंडिया. अब हॉकी की थोड़ी बात कर लेते हैं. हॉकी इंडिया एनुअल अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट हुए. ठीक है, 2025 के अवार्ड्स हैं बट डिस्ट्रीब्यूट 2026 में हुए, इसीलिए हम इस ईयर पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स में इनके बारे में. ठीक है, हार्दिक सिंह को और क्या मिला है? बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड फॉर प्लेयर ऑफ द ईयर मेंस कैटेगरी में, और विमेंस कैटेगरी में किसको मिला है? नवनीत कौर को. सो एग्जामिनर एक तो सीधे पूछेंगे कि बलबीर सिंह अवार्ड किसे मिला है मेंस कैटेगरी में और विमेंस कैटेगरी में. अगर ये नहीं पूछेंगे तो पूछेंगे नवनीत कौर या फिर हार्दिक सिंह कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है. सो द राइट आंसर इज हॉकी. लेट्स मूव फॉरवर्ड स्टूडेंट्स विद दिस एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप. ठीक है, अब भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत टाइम बाद फिर से मौका मिला है इंडिया को, इंडिया की भी कौन सी सिटी? अहमदाबाद को, कि वो होस्ट करेगा 2026 एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप. अब तो मतलब ये होस्ट हो भी गई, पिछले महीने का करंट अफेयर है. 1 to 10 April, the first continental meet in India since 1982. ठीक है, मतलब 1982 के बाद अब होगा, और ये होगा कहाँ? अहमदाबाद. चलिए, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. इसमें भी पहले गांधीनगर थी बट अहमदाबाद को सिलेक्ट किया गया. अब ये कौन सा रिकॉर्ड है जो अभी अभी ब्रेक हुआ है? इट्स रिलेटेड टू IPL.
ठीक है, अब विराट कोहली became the first player in IPL history to hit 800 boundaries. How many? 800. So it's a big record, right? So इन्होंने अब किसे सरपास कर दिया है? शिखर धवन को. शिखर धवन के बाद रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा बाउंड्रीज हिट की थी, बट अब आ गए हैं कोहली. ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट उन्होंने अब आईपीएल में कितने 6 बेसिकली हिट करे हैं? 300. सो इंपॉर्टेंट है ये डेटा, याद रखिएगा. The next is related to पलक एंड मुकेश. सबसे पहले एग्जामिनर पूछेंगे पलक एंड मुकेश कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो द आंसर इज शूटिंग. और अगर मैं बात करूं कि इन्होंने ऐसा क्या किया है जो करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट है, दे वन गोल्ड मेडल. ठीक है, इन्होंने यूनाइटेड होके कंबाइंड होके पार्टिसिपेट करा और इनका क्यूमुलेटिव स्कोर है 487.7. ऑलराइट. And if I talk about ISSF, it is International Shooting Sports Federation. ठीक है, एंड बेसिकली चाइना को मिला है सिल्वर, हंगरी को मिला है ब्रोंज, इंडिया आई है फर्स्ट पे. ठीक है, चलिए. ISSF जूनियर वर्ल्ड कप, अब फिर से शूटिंग की बात. ठीक है, ये है शिव नरवाल, इनको गोल्ड मिला है फॉर 10 मीटर एयर पिस्टल मेंस जूनियर कैटेगरी में. इनका स्कोर है 241.8. ठीक है, ये जो इवेंट थे ये कायरो में होस्ट हुए, ISSF जूनियर वर्ल्ड कप. ठीक है, एंड इजिप्ट की कैपिटल है स्टूडेंट्स. ये इन्होंने डिफीट करा है उज्बेकिस्तान के प्लेयर को 1.8 पॉइंट से. एग्जामिनर ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएगा, वो सिंपल पूछेंगे शिव नरवाल कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है और उन्हें कौन सा मेडल दिया गया. ठीक है, तो बेसिक आपको इसमें स्पोर्ट्स में ज्यादा डेप्थ में चीजें नहीं पूछी जाती है स्टूडेंट्स. ऑलराइट. लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड ये किस किस को दिए गए हैं? जैसे इंडिया में दिए जाते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड्स या फिर अर्जुन अवार्ड्स विच आर रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, राइट. तो यहाँ पे भी लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स बेसिकली वर्ल्ड वाइड दिया जाता है. स्नो बोर्डर क्लो किम को मिला, ठीक है, फॉर वर्ल्ड एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, और अरीना सबलंका को मिला है वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर. ये दो मैंने पिक्चर्स इसीलिए लगाई है ताकि आपको नाम आसानी से याद हो जाए. एंड विद दैट वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द लास्ट 2 इंफॉर्मेशन जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी स्टूडेंट अबाउट द ऑस्ट्रेलियन ओपन. लेकिन इस स्लाइड में मैंने आपको बेसिकली ये भी बताया है कि इन्होंने किसको डिफीट करा है. तो कार्लोस अल्कराज ने डिफीट करा है नोवाक जोकोविक को, हु इज वन ऑफ द एमिनेंट प्लेयर्स ऑफ टेनिस, राइट. एंड यहाँ पे मैंने डबल्स के भी आपके लिए विनर्स के नाम लिखे हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन के. एंड इफ आई टॉक अबाउट दिस स्लाइड, सो एलेना, ये भी मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ. राइबकिना को भी विमेन सिंगल टाइटल, मतलब इन्होंने खुद जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल. ठीक है, और बेसिकली एलिसे मर्टेन्स एंड ज़ांग शुआई इन्होंने डिफीट करा है एना डेनिलीना एंड अलेक्सेंड्रा ट्रेनिको. ठीक है, डबल्स में. तो देखिए बेसिकली सिंगल टाइटल भी होता है और डबल टाइटल भी होता है. तो मैंने ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में आपको बता दिया. अभी ना फ्रेंच हुआ है, ना विंबलडन, और ना ही यूएस ओपन, बट ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है. सो वी हैव कवर्ड ऑल द इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स फॉर 2026. प्लीज डू अ गुड रिविजन ऑफ इट. यहाँ पे हर करंट अफेयर में कुछ स्टैटिक टेक अवेज भी हैं, उनको भी आप रिवाइज करिए, बिकॉज कई बार स्टैटिक डेटा पूछा जाता है. इट्स नॉट नेसेसरी कि अभी एशियन गेम्स का वेन्यू पूछे, हो सकता है वो आपसे पूछे कि फर्स्ट एशियन गेम्स कहाँ हुए थे ऑर्गेनाइज. तो आपको हॉलिस्टिकली करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने हैं स्टूडेंट्स. ओके, विद दैट आई विश यू ऑल द लक. टेक केयर. जय हिंद.